اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ یا محمد إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ خالقنا العظیم. جناب پروفیسر آفتابیہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم. موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج یہ اور کل ہماری باری ہے. احباب گرامی قدر، آج یہ ہمارے سامنے ایک جنازہ ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان 5 یا 10 منٹ کے لیے اس مقام پہ جب کھڑا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر، چاہے اس کا تعلق میدان سیاست سے ہو، معاشیات سے ہو، قرابت سے ہو، کسی سے بھی ہو، چند لمحوں کے لیے اسے یہاں کھڑے ہو کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فرمان
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ چند روزہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اس موت کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے حسن اعمال کون کرتا ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ فرمایا یہی زندگی کا فلسفہ ہے کہ اللہ کریم نے جو انسان کو چند لمحے، چند گھنٹے یا چند سال عطا کیے ہیں، نہ جانے کس وقت اس کا جانے کا وقت آ جائے، اس سے پہلے اسے اس وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے دانے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ بن عمر دنیا میں ایسے زندگی گزارو گویا کہ تم ایک مسافر ہو۔ جس طرح ایک مسافر جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جس کے پاس اتنا ساز و سامان نہیں ہوتا، جس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی مکان نہیں ہوتا، فرمایا اس طرح زندگی گزارو دنیا کے اندر، او عابر السبیل، یا ایک مسافر کی طرح گزارو۔ گویا یہ چند روزہ جو زندگی کی ساعتیں ہیں اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر دی ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے احکام کی کتنی پابندی کرتے ہیں، ہم حقوق اللہ کتنے ادا کرتے ہیں، ہم حقوق العباد کتنے ادا کرتے ہیں۔ گویا یہی ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں جن کا نامہ اعمال اللہ کریم ہمیں دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ پوچھے گا انسان تجھے میں نے زندگی جیسی عظیم نعمت دی تھی، تمہیں صحت و تندرستی دی تھی، تو نے اسے کہاں خرچ کیا تھا؟ کیا تو نے حقوق اللہ کو ادا کیا تھا؟ کیا تو نے حقوق العباد کو ادا کیا تھا؟ کیا تو نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے؟ کیا تو نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے؟ کیا تو نے والدین کا حق ادا کر دیا؟ کیا تو نے راستے کو اس کا حق عطا دیا؟ اللہ کریم ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو یہ جو چند لمحے ہوتے ہیں 10 یا 15 منٹ، یہی اصل سوچنے میں انسان کو اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس لمحے ہماری بھی یہ باری آ جائے، ایک باری کا انتظار ہے۔ تو اس خدائے لم یزل کی پاک بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ کریم جانے والے مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے اور ان کی آنے والی منازل کو آسان فرمائے۔ پروفیسر آفتاب صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے، مختصر وقت ہے، میں بھی اسی حوالہ سے 2-4 باتیں کروں گا۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو کچھ عطا کیا ہے اسی کی آزمائش ہونی ہے۔ اب اچھے اعمال کے حوالہ سے اللہ آزمائے گا کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ اب عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی زبان عطر سے لوگوں کو بتا دو کہ یہ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ اور اطاعت و فرمانبرداری کیسے کریں؟ جیسے عبد ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبد جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، اور غلام جس طرح اپنے آقا کے سامنے رہ کر عمل کرتا ہے ایسے اگر وہ کرے گا تب وہ کامیاب ہوگا، تب اس کے اعمال جو ہیں اچھے ہوں گے۔ تو سامعین اکرام، آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری اور پیروی میں اپنی زندگی گزار کر یہاں سے جائیں گے تب ہی ہمارے اعمال جو ہیں وہ حسن کا درجہ رکھیں گے، تب ہی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، جن کا تقاضا
अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत और कानून ने किया है। तो सामीन इकराम, अब कौन सी चीज़ रुकावट बनती है? इस बंदगी को, इस इबादत को और इस गुलामी को, जिस गुलामी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अरशाद फरमाया है, ये कौन सी चीज़ है जो इसके दरमियान में रुकावट आ जाती है? उसमें एक 4 खासियतें इंसान के अंदर होती हैं। इंसान की तबी, उसकी तबीयत में एक खासियत उसमें यह है कि वो मैं करता है। वो हर चीज़ में अपनी आना की तस्कीन के लिए वो तकब्बर और गुरूर और तरह तरह की ऐसी चीज़ें कर बैठता है कि जो उसका दिल कहता है, उसकी मैं कहती है। अगर उस मैं को छोड़कर वो अल्लाह और उसके रसूल के ताबे जिंदगी कर ले, तब उसका अमल जो है वो अच्छा बन जाएगा। और अगर मैं के मुताबिक उसने अपनी उस खासियत जिसको उसने तब्दील करना था, अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून वज़ा किया था और वो कानून कुरान मजीद है। और कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी के तरीके और सलीके सिखा दिए हैं। अगर कोई अमल करने में उन्हें किसी जगह पे मफहूम को समझने में कोई ऐसी बात सामने आती है, तो फिर अल्लाह के रसूल की जिंदगी उसवा कामल के तौर पर हमारे सामने मौजूद होती है। और अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल के उन अहकामात के मुताबिक अपनी आना को लफा दे, उसको ज़ेर कर दे, उसको गुलाम बना दे अल्लाह और उसके रसूल का, तो फिर उसके अमाल जो है वो अच्छे ही होंगे। और दूसरा क्या है कि ये दुनिया की जो बड़ी रंगीनी है, चाहत है, मफाद परस्ती है, और उसमें अपने आप को जायज़ नाजायज़ तरीके से सब कुछ हासिल करने के लिए वो सारे कानून जो अल्लाह और उसके रसूल ने वज़ा किए थे उनको पसे पुष्ट डालकर अपने मुफाद की बात करता है, अपनी अगराज की बात करता है और कानून के ताबे अपने आप को नहीं बनाता, तो फिर वो दीन से दूर होता जाता है, फिर अल्लाह से दूर होता है, रसूलुल्लाह से दूर होता है, कुरान मजीद से दूर होता है। और जब वो दूर हो जाता है तो फिर अमाले हसना नहीं होते। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह और उसके रसूल के ताबे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और वो अबदियत, वो गुलामी जिसका तकाजा कुरान करता है उसके मुताबिक हमें अपनी गुलामी, अल्लाह और उसकी गुलामी जो है उसके तहत जो ज़िंदगी गुजारेगा उसके ही अमाल अच्छे होंगे, वरना कल क़यामत के दिन उसको इत्साब के सामने पेश होना होगा। काबिल साद इहतराम सामीन मुकर्रम, आज हम वादी बना के एक शानदार आदमी से महरूम हो रहे हैं। ये बुज़ुर्ग जो रिश्ते में हमारे खालू हैं, 27 साल इन्होंने तवील अलालत देखी है। ज़बान का फालिज था, ज़बान का। इतनी बुर्दबारी, इतना सब्र, इतना तहम्मुल मजाजी, मेहमान नवाज, गरीब परवर, ख़ानदान, कबीले और घर को बचाने वाला इंसान मैंने अपने कबीले में कोई शख्स नहीं देखा। करीब का हमारा रिश्ता है, इनकी बेटी हमारे भाई के घर है। इस सारे मामले में 100 बार ऊंच नीच भी होती है। मैंने इनको एक मिसाली और शानदार इंसान पाया है। हमेशा तामन करने वाला, हमेशा शफकत करने वाला, हमेशा माफ़ करने वाला, मुजाहिदीन की मदद करने वाला, गुरबा की मदद करने वाला, ख़ानदान को जोड़ने वाला और दुख सहने वाला इंसान। सामीन मुकर्रम, ऐसे इंसानों की बहुत किल्लत है। यूं भी जो इस उम्र का इंसान मरता है वो तजर्बे भी साथ लेकर जाता है, शफकतें भी लेकर जाता है जो हमें ज़रूरत होती है पीछे। और ये बुजुर्ग एक शानदार किरदार के साथ जा रहे हैं। सामीन मुकर्रम,
प्रोफेसर साहब ने बात रखी, इस मौके पर पैगाम यही होता है कि हमारी जिंदगियों के मुकासद हैं। हम इस कायनात के अंदर यूं ही नहीं आए और चले जाएंगे। इस कायनात का एक मालिक है जिसका नाम अल्लाह है, उसे पहचानने की जरूरत है। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह है। ये जिन ताकतों से हम डरते हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये हमारे कमजोर ईमान का ऐलान है कि हम फलां से डरते हैं, फलां से डरते हैं, फलां से डरते हैं, भूख से डरते हैं, खौफ से डरते हैं। अल्लाह डरने वाली चीजों से पहचाने। और कुल इंसानियत में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बंदे की पैदाइश तक इंसानियत में सबसे बड़े रसूलुल्लाह हैं। उनको पहचाने, उन्हें पहचाने, क़यामत तक उनकी नबूवत है, खातमुन नबिय्यीन है। पूरी कायनात के ऊपर उनका राज चलेगा और उनकी बात को दुनिया में लास्ट वर्ड ऑर्डर की हैसियत है। कोई दुनिया की ताकत किसी मामले में कोई कानून नहीं बना सकती, जो रसूलुल्लाह ने बनाए वही आखिर है। काबिल साद इहतराम, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी किताब, सबसे सच्ची किताब, सबसे पुरानी किताब और करोड़ों साल बाद तक जदीद किताब कुरान है। कोई मुतबादल किताब नहीं है। इन तीन चीजों को पहचाने, अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के महबूब को पहचाने, महबूब जो किताब हमारे हवाले कर गए उसे पहचाने। आज दुनिया में फितने हैं, मगरब के अंदर फितने आ रहे हैं। आज इंसानों को रब से दूर किया जा रहा है, रसूलुल्लाह को मतनाज़ा बनाया जा रहा है और बड़े बड़े दानिश्वर ये कहते हैं कि अल्लाह से दूर हो जाएं, आजादी हासिल करें। उसके मुकाबले में उम्मत की जिम्मेदारी है कि इंसानियत को अल्लाह की तरफ मोड़े। आज इंसान रसूलुल्लाह से दूर किए जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के नहीं कुल जानू के लिए रहमत लिल आलमीन है, जो अभी साइंस ने दरियाफ्त नहीं किए। क्या आज हमारा नौजवान उस तरह रसूलुल्लाह को पहचान रहा है? क्या जिंदगी में कभी गौर कर रहा है? सब किताबें पढ़ता है, सब नेट देखता है, सब टेक्नोलॉजी का मरीद होता है। कुरान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आज जो लोग हमें खौफ दिलवाते हैं वो सदियों पहले हाथी लेकर आए थे और अल्लाह की अबाबीलें टेक्नोलॉजी ने जमीन कर दे मारा था। आज पूरी दुनिया साइंस को और टेक्नोलॉजी का खुदा का मुकाम देती है और अल्लाह ने एक मामूली सा कोरोना वायरस भेजा था, सारी सांसें दीवार के साथ लग गई थी। सामईन मुकर्रम, हमें नौजवानों को, बुजुर्गों को, माओं को, बेटियों को उस कुरान के साथ जोड़ना होगा जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी अभी दरियाफ्त नहीं हुई जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अहले किताब का इल्म रखने वालों को कहते हैं जाओ मलका सबा का तख्त ले आओ। वो तख्त कितना बड़ा था, वो टेक्नोलॉजी अभी दरियाफ्त नहीं हुई। वो चिमटी जो दूर वादी में कह रही थी कि सुलेमान के लश्कर आ रहे, बिल्लू में घुस जाओ, और अल्लाह का नबी मीलों दूर चिमटी की आवाज सुन रहे, ये टेक्नोलॉजी दरियाफ्त अभी नहीं हुई। और अल्लाह के महबूब जिस बुराक पर अर्श मुअल्ला पर जाते हैं वो भी टेक्नोलॉजी नहीं आ सकी। काबिल साद इहतराम, सारी टेक्नोलॉजी अल्लाह ने हमें कुरान में दी है।
हम छोटे छोटे मोबाइलों और छोटी छोटी साइजों के पीछे खुदा को छोड़ बैठे। आज हमें जाना होगा। और दूसरा फितना मादियत का है। बच्चा सांस लेता है, हर उम्र का बंदा ये कहता है रोटी 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 रोटी। क्या इससे पहले लोग रिज्क नहीं खाते रहे? क्या जो हम तक पहुंचे हैं रिज्क मौजूद है? ये एक फितना है। आप अल्लाह को पहचाने जिसके पास रिज्क के खजाने हैं, वो तरीका अपनाएं जिससे खजाने मिलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कोई अल्लाह से मिलने का तरीका? फरमाया 5 बार तो वो खुद आवाजें देता है, खुद आवाजें देता है, हैया अल फला फला फला, तू मुनाफे का ताबेदार है, आ फला की तरफ। और फिर रात के आखिरी समय में अल्लाह कहता है कि मैं अर्श से नीचे आसमान पर आता हूं, मेरी मखलूक क्या मांग रही है? और हम पूछने टेक्नोलॉजी कब आएगी? ये टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। अल्लाह के साथ जुड़े, अल्लाह के साथ मिले, अल्लाह के रसूल को पहचाने, अल्लाह की किताब को पहचाने। हमारी दवा है कि जाने वाले बुजुर्ग जिंदगी में सारी जिंदगी नेकियां, खैरात, फला और नेकी का काम करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। बतौर इंसान कोई कमी रह गई हो तो अल्लाह माफ और आने वाली मंजिलों में आसान। नियत भी कर लिया करें। अहले इल्म कहते हैं कि बंदा जब घर से चलता है तो नियत होती है। दुआओं के हवाले से जो दवा आती है वो मांगता जाए, जो दवा जिस जबान में आती है वो मांगता जाए। तो गोया जी अल्लाह सारी जबानें, परिंदों की, कीड़ों मकोड़ों की, अल्लाह बड़ा है। तो गोया आप दवाएं मांगते रहा करें, चुप करके खड़े रहते, वो मांगते रहा करें अपनी जुबान में। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
गुनाहगारों की पढ़ी गई नमाज जनाजा को करीम नबी के वसीला से अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। आमीन। शुरकाए नमाज जनाजा ने जो सूरह फातिहा, सूरह इखलास, दुरूद पाक का विर्द किया, करीम नबी का वसीला इसे अपनी बारगाह समदियत में शर्फ कबूलियत अता फरमा। इसके अंदर कोई भी गलती, कोताही, सुस्ती, लग़ज़िश है, करीम नबी के वसीला से माफ़ी चाहते हैं, बारिला मुआफ़ फरमा। इसका सवाब हदियतन तोहफ़तन आका करीम की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी मरहूमा उम्मत जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। सबके सगायर कबायर गुनाहों को मुआफ़ फरमा। सबको मेरे आका की शफ़ाअत कुबरा सुगरा नसीब फरमा। खालिक कायनात अख़ुसल ख़वास नो मुतवफ़ी जो हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, करीम नबी के वसीला से इन्हें पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इनके सगायर कबायर गुनाहों को मुआफ़ फरमा। कब्र में आने वाली मुश्किल मनाज़िल को आसान फरमा। कब्र के अंदर करीम आका की बार बार ज़ियारत, पहचान और शफ़ाअत नसीब फरमा। शुरकाए नमाज जनाजा में जो नेक बंदा है उसका वास्ता और वसीला हमारी दुआओं को इन बुजुर्गों के हक में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। इनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बात बना। इनके पूरे खानदान को इस सदमे में सब्र जमील और बदले में अजर अजीम अता फरमा। अब कुल खता या खयातुन नबी, दफ़अुन बला या खयातुन नबी, तकिया नदारुन बगैर खुदा, वसीला नदारुन बजुज़ मुस्तफ़ा जो रहमत के टुर जाने ने सब रंग रंगीले, बस नाम खुदा दा रहना। टुर जाने ने सब रंग रंगीले, बस नाम खुदा दा रहना। ते दम दम नाल मुहम्मद बख्शा, असी अल्लाह अल्लाह कहना। ते ना कर बंदिया है तू मेरी मेरी, ना कर बंदिया तू मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी। चार दिनां दा दुनिया मेला ते फिर मिट्टी दी टेरी। के नारो चलिया मौत दा सुन के, नारो चलिया मौत दा सुन के, ते ना रोड़ अखियां चों पानी, क्योंकि टुर गए नबी मोहम्मद सरवर। ए मन तकदीर रबानी, ते माड़ी न करिए रूप गणे दा, माड़ी न करिए रूप गणे दा। इत्थे वारस कौन हुसन दा, सदा ना रहसन शाखां हरियां, ते सदा ना फुल चमन दा। ते असलां नाल जिने की करिए, ओ नस्लां तक नहीं भुल दे। बद नस्लां नाल नेकी करिए, ओ पुठियां चालां चले दे। के बेकदरे दी यारी कोलो, बेकदरा दी यारी कोलो, तौबा लख लख वारी। चंगा होया लड़ नेड़ियों छुड़िया, अजे उम्र नहीं गुजरी सारी। ते नीचा दियो नीचा दी अशनाई कोलो, फैज किसे न पाया। किकर ते अंगूर चढ़ाया, ते हर गुच्छा जख्माया। के टुर गए यार मोहब्बत वाले, टुर गए यार
محبت والے تے لے گئے نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی گر ٹلی تے شام پیا تے لوگ نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آ پھر کم کر یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او چار دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں تلکن رستا مینو دے کون سنبھالا پکے دیون والے بہت تم ہاتھ پکڑن والا تے حکم دے بن کام تمام میسر ہوندے او نام ادا چت دریا اور ساوے کردہ تے کہروں ساڑے ہریا